Tips for happy married life. This guy made me do. There's a lot of work that goes into content creation और वो नजर नहीं आता. Not everything is about money to judge the quality of life. Biggest hoax of being an influencer. I don't even know how much we make in a month. आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं. आप Hopefully we will be able to change that. जो brands है ना, they would be very easy to work with. बस आएंगी brands और बंदा नोट छापेगा. हमने 2-3 साल की सेविंग बिल्डअप कर ली थी. From where you buy hijabs, I started taking hijab and want to buy. We used to think about fashion influencers कि यार क्या है, बस कपड़े पहन के कर तो दिया. No, it's But a lot yeah. of work. Everybody has to learn on their own. Some of the books I would say कि helped us in a happy marriage as well. Thank you. No, really, thank you. Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. And welcome to the second episode of our Q&A session. And we really enjoyed the last episode, so we're back. और हमने जो Instagram पे स्टिकर डाला था उस पे मज़ीद क्वेश्चंस आए थे. तब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे, तो वी थॉट कि हम इसका सेकंड पार्ट बना दें. आज भी हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स डिग इन. So, what's the first question? Are you able to earn equal amount of money in Pakistan you were earning in Qatar? मैं आंसर कर देती हूँ. मैं तो सिर्फ कार्ड्स बना रही थी. तो yes, definitely I'm making more money in Pakistan. What about you? I am definitely not making not nearly as much. I think I don't even know how much we make in a month. But because ऊपर नीचे होता है ना, हमारा business ऐसा है. But I would say कि हम 10% भी नहीं कमाते जो हम कतर में कमाते थे. But you know, not everything is about money to judge the quality of life. Yeah. So yes, we make probably 10% of what we used to make in Qatar. Tips for happy married life. किसी को पता है हम भी बता दें. नहीं, we are happily married. Yes. अच्छा. So I mean, there's no recipe, I would say, क्योंकि अगर ऐसी कोई रेसिपी होती तो हर बंदा उसको फॉलो करके, because nobody wants an unhappy marriage. Yeah. There's no set And I rule. think happiness is relative. Like हाँ, कुछ अगर एक चीज़ मुझे खुश कर रही है वो शायद आपको ना करे या वो इनको ना करे, तो हर किसी के खुशी का मयार डिफरेंट होता है. कोई पैसे से खुश होता है, कोई ट्रैवल करने से खुश होता है, कोई खाना खा के खुश हो जाता है, कोई आराम करके खुश होता है. तो you know, but we should still share कि हमें क्या चीज़ें हमें अच्छी but what work we think what works works for us. Yes. But again that doesn't mean that it will work for everybody. Yeah. So what do you you have think? any tips? I think number one rule for us, हमने पिछले एपिसोड में भी थोड़ा बहुत टच किया था इस पे. I think it's honesty. Honesty I think is really important for a happy marriage. What about you? मैंने अच्छा वाला बोल दिया. Respect. हाँ. Yeah, you have to respect the other person ना, कि उसकी you have to respect their choices or tastes. You have to respect their family or themselves or their self-esteem. You have to respect what they like. तो आप दूसरे की जब इज्जत करते हो तो फिर and reciprocate भी होना चाहिए. I guess. और communicate. I think communicate करके आप बहुत सारे issues resolve कर सकते हैं. स्पेशली लड़कियां ये करती हैं कि, और शुरू में मैं भी ये करती थी कि नाराज़ होकर बैठ के किसी बात पे, और इनको पता ही नहीं होता था कि किस बात से मैं नाराज़ हूँ. तो मैं एक्सपेक्ट करी हूँ कि आके मनाएंगे, वो उनको पता ही नहीं कि मैं नाराज़ हूँ, तो कैसे आके मनाएंगे. तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम दिल में रख के बैठ जाते हैं, नाराज़ होकर बैठ जाते हैं. तो अब what we do is कि we try to communicate और resolve कर लें बात को, ना कि वो दिल में रख के बैठे रहें. वैसे की ये प्रॉब्लम है कि ये 1-2 साल एक बात ना रख के बैठा रहेगा, तो एकदम से आपको पता चलेगा ओ ये चीज़ तुम्हें बॉदर करती है, पर मुझे तो कोई पता ही नहीं था, कभी पता ही नहीं था ऐसे. तो ये चीज़ मुझे बॉदर करती है कि ये दिल में रख के उस वक्त नहीं बोलता है, बहुत अरसे बाद आपको एकदम से धचका देता है. तो मे बी So yeah, and again, marriage is a work in progress throughout. Definitely. Some of the books I would say helped us in a happy marriage as well, that we can recommend. And हमने ये ऐसी books थी, हमें इतना उन्होंने help की थी कि हम जो शादी हमारे दोस्तों की हुई, हमने उनको भी gift किए हैं ये books. One of the books was Men Are From Mars. Women Are From Venus and Men Are From Mars, something like that.
और बेसिकली मर्द और औरतें जो है वो अलग तरीके से बनी हुई है, Yes. डिज़ाइन उनका दिमाग जो है वो बहुत डिफरेंट है. लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल I think एक दूसरे से लो होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप परफेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे कि लेट्स से मैं जो हूँ, मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे तरीके से अगर सफाई नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आएगा या मैं नाराज़ होंगी, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो इसी तरह सफाई करे जिस तरह मुझे पसंद है, तो दैट्स इम्पॉसिबल. बिकॉज वही अगेन मेरा सफाई का मयार डिफरेंट है, इनका सफाई का मयार डिफरेंट है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं और जैसे एक और चीज़ भी हमने मतलब छोटी बहुत चीज जस्ट दैट फैक्ट दैट के मर्दों का दिमाग बहुत दिमाग different है. डिफरेंटली चलता है, उसको समझने में रमा को 1-2 साल लगे और वाइस वर्सा. एंड बिकॉज हमारी सोसाइटी में वैसे मतलब ऑपोजिट जेंडर्स का उतना इंट्रैक्शन नहीं होता, और जब देन यू स्टार्ट लिविंग विद दिस पर्सन एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो आपकी तरह ही बिहेव करेगा या आपकी दोस्तों की तरह बिहेव करेगा, तो नहीं होता ऐसे. वन ऑफ द थिंग्स इज़ लाइक, अब हमने पहले एक दावत की थी अपने घर पे, हाउस वार्मिंग थी हमारी, तो उसमें बाय द टाइम वो पूरा दिन जो है वो रमा उसको मतलब सेटअप करी थी जगह को, मैं अपने हिसाब से मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा था. कैसे वॉचिंग टीवी. पर रमा तो को बड़ा बेसिकली गुस्सा आ कि गया. मैं सफाई करी थी और मुझे लग रहा था कि वैस खुद से उठ के इनिशिएटिव लेगा या कोई काम कर लेगा, कुछ कुकिंग कर देगा, कुकिंग में हेल्प कर लेगा या सफाई में मेरा हाथ बटा देगा, बट हो ही नहीं रहा था कुछ. तो मुझे जो इम्प्रेशन पड़ा वो ये लगा कि ओ दिस इज़ माई लाइफ नाउ, और मुझे अब सब काम इसी तरह खुद करने होंगे जैसे हमारी फैमिलीज में ऐसे ही होता है. तो आई वॉज एक्चुअली वेरी हर्ट कि वो मतलब अब तो यही होगा. तो बस पूरा दिन ऐसे ही गुस्से में निकल गया. और जब फाइनली इनको ख्याल आया कि कुछ समथिंग इज ऑफ, तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि ये मुझे बॉदर कर रही है चीज़. तो ही गोज लाइक कि तुमने मुझे बताया ही, यू नीड टू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम मी. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग था. और अब मेरी इतनी पक्की आदत हो गई है कि अगर मुझे कोई काम बताना होता है वैसे तो मैं आई स्पेल आउट एवरी इंस्ट्रक्शन कि अगर जाजिब का बेड टाइम रूटीन करना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे मुझे पूरा बताना पड़ता है. कपड़े कहाँ रखे हैं, मोजे कहाँ रखे हैं, सॉक्स द रेस्ट ऑफ द थिंग्स कहाँ रखी हैं. तो असेंडिंग ऑर्डर में बता दी कि सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और एंड में ये होगा. So yeah, now she is used to it, and then again once she gives me all of those instructions, because men are more like they follow the instructions, they're followers in this kind of thing. और I feel कि अब I don't know कि generalize नहीं करना चाहिए, but he cannot multitask और मैं कर लेती थी multitask. तो ये भी मुझे बहुत चीज़ बॉदर करती थी कि भाई एक काम इतने आराम आराम से हो रहा है, वो फिनिश होगा तो दूसरा काम होगा. बट ही इज़ डिफरेंट, आई एम डिफरेंट. ये बात समझने में भी काफ़ी टाइम लगा. आई डोंट नो इफ ये टिप्स हेल्पफुल थी, बट अगेन एज लॉन्ग एज आप ये रिस्पेक्ट करोगे यार, उसका दिमाग ऐसा है यार, रिस्पेक्टफुल होंगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह दिस इज हाउ I would say this is the tip to a happy marriage. From where you buy hijabs? I started taking hijab and want to buy. अच्छा, कोई मेरी पर्टिकुलर शॉप नहीं जहाँ से मैं लेती हूँ. मुझे अगर कोई मैचिंग का कहीं से भी मिल रहा है अच्छा तो मैं ले लेती हूँ. तो मैं शुरू में तो हैदरी से लेती थी कराची में, उसके बाद मैं कतर चली गई तो वहाँ कारफोर पे मुझे जर्सी हिजाब्स मिले जो मैं अभी तक यूज़ करती हूँ. और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि वो मैंने कहाँ से लिए हैं. तो मैंने कतर से लिए हैं और मैंने अभी तक वो यहाँ पे नहीं देखे हैं. और अभी रिसेंटली मैंने G9 था, वो G9 की, हाँ, वहाँ पे एक मार्केट थी, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी वैरायटी और अच्छे कलर्स नजर आए हिजाब के. इस्लामाबाद में अगर चाह रहे. और तो, आपारा, हाँ, आपारा में मिलते हैं और ऑनलाइन भी काफ़ी सारे पेजेस हैं, बट कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ से मैं तुमने महा हिजाबी, हाँ, बट ये मैं कोई एक खास जगह नहीं है जहाँ से मैं लेती हूँ. जहाँ से मुझे कोई अच्छा नजर आया तो मैं ले लेती हूँ. I hope that was helpful. Sorry, bit personal if you want to answer. Have you had any other source of income when you left? No, we didn't have any source of income. What we did, हमारी जो strategy थी वो ये थी कि हमने 2-3 साल की सेविंग बिल्डअप कर ली थी, और वो सेविंग्स जो थी हमने डॉलर में सेव रखी थी. तो बिफोर यू कम टू पाकिस्तान आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफ़ा 2-3 चक्कर लगाएं पहले पाकिस्तान के, और उन 2-3 चक्करों में 2-3 काम करें आप. एक तो अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाएं और
अपनी बाहर की इनकम दिखा के बैंक अकाउंट्स खुलवा लें, ख़ास तौर पे डॉलर वाला अकाउंट और पाकिस्तानी रुपीज़ वाला भी। और बैंक आपने कैसे चूज़ करना है उस पर हमने अभी रिसेंटली एक रील बनाई है, वो ज़रूर देखें, वो बड़ी हेल्पफुल रील है। उसके अलावा फिर जो पैसे हैं वो आप उसमें डालें। बस basically I would say once you land here, just have a chunk of saving that you can use for the next 3 years, and in those 3 years give yourself time कि आप अपने आप को यहाँ से फेमिलियर करेंगे, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने पिछली एपिसोड में भी डिस्कस किया था, एंड देन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू इट। अगेन डोंट कम विदाउट अ प्लान, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट आ जाएं ब्लाइंडली। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम ये कंटेंट क्रिएशन करेंगे, एंड देयर वाज अ प्लान बी एंड सी, इफ दिस फेल्स देन यू नो वी कुड डू सम डॉक्यूमेंट्री वर्क। हमने सोचा हुआ था कि फॉर अल जज़ीरा, BBC वगैरह के लिए वी कुड डू सम डॉक्यूमेंट्रीज, वो भी नहीं हुआ। तो मे बी वी कुड डू अ जॉब एट द UN और सम अदर एम्बेसी हेयर, और वो भी नहीं। अगर वो प्लान डी था कि मे बी वी कुड जस्ट डू शादी की वीडियोज़, और वो भी अगर नहीं होता तो मे बी देन यू नो वी कुड हैव जस्ट सेड कि ओके मे बी दिस इज़ नॉट फॉर अस एंड फ्लाई बैक। तो या मेक मल्टीपल प्लान्स, कम और अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आप आइए वापस। What made you decide to leave Qatar? What was the motivation? This guy made me do. नहीं, इट्स बिन वेरी क्लियर। आप मेरे चैनल पे जाके जो हमारी इंट्रो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। द मोटिवेशन वाज आई एम द ओनली सन, माय पेरेंट्स मूव्ड बैक हियर, तो आई वांटेड टू बी क्लोजर टू देम। दैट वाज मोटिवेशन नंबर 1। नंबर 2 वाज just to pursue this, scratch that itch के content creation करनी है, YouTube पे और brands के साथ काम करना है, एक legacy बनानी है। So that was the itch that I wanted to scratch before I turned 30. तो 3 साल, I gave myself 3 years, 27 age से लेकर 30 years तक का जब मैं हुआ, and alhamdulillah it worked out. It was a bet that we took on ourselves. Yeah. That was the motivation. But jokes aside, I actually did it for him because इनकी जॉब जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होती थी, और कतर में हाँ, इनको देख के मतलब सोच कि इतना स्ट्रेस लेके बंदा काम कर रहा है और इन्जॉय भी नहीं कर रहा, मतलब ही इज फीलिंग स्टक। तो यू नो आई डिडंट वांट टू बी द रीजन फॉर हिज मिजरी, सो आई जस्ट सपोर्टेड हिम एंड वी Thank you. No, really, thank you. Like, because if she wasn't on board, it would have been very difficult to move back. So, yeah. Biggest hoax of being an influencer? What I used to think was कि जो brands है ना, they would be very easy to work with, और बस आएंगी brands और बंदा नोट छापेगा. It's actually very tough to convince brands to work with you. Yeah. हाँ, they don't think rationally. या ये भी लगता है कि बड़ी ग्लैमरस लाइफ है और बहुत पैसे छाप रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ वर्क। मतलब काफ़ी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती हैं, आपने फिल्मिंग करनी होती है, एंड स्पेशली इफ़ यू डोंट हैव अ टीम लाइक फॉर अस इट वाज जस्ट द 2 of us, तो फिल्मिंग भी खुद करनी है, स्क्रिप्ट भी खुद लिखनी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खुद करना है, एवरीथिंग, और यू डोंट गेट टू सी दैट। मतलब आपको बिहाइंड द सीन्स नहीं पता चल रहा होता। फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि हंसते खेलते 24 hours in each other's face. So there's a lot of work that goes into content creation और वो नज़र नहीं आता। Yes. But वो जो मैं कहना चाह रहा था ना ब्रांड वाली बात, वो यही है कि वो आपको लगता है मेरिट पे हर चीज़ होती है यहाँ पे, कि आपने अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर द अथॉरिटी ऑन अ सर्टेन नीश, that you, if a brand wants to work with you, they would come to you. No, they don't want that. Abhi, this is still it's an industry still in infancy, or everybody's still figuring it out. तो पैसे कमाना जो है ना, as an influencer, as a creator, that is a whole another level of like मतलब struggle, या उसको कहेंगे art. और ये भी एक चीज़ है यहाँ पे कि जो influencers who have made it और वो get a lot of brand deals या जो भी, there's this, they don't want to share, not all of them want to share, there are exceptions, but like there's no effort by the senior creators to pass on some of the knowledge. Everybody has to learn on their own. So hopefully we will be able to change that
hopefully. लगता है लगता है हर चीज़ बहुत आसान है या- बट होती नहीं है. तो एक और होक्स है ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर. व्हेन यू आर वाचिंग द कंटेंट ना, आपको लगता है कि हाँ मैं भी कर लूँगा. स्पेशली फॉर द वी यूज्ड टू थिंक अबाउट, फॉर एग्जांपल वी यूज्ड टू थिंक अबाउट फैशन इन्फ्लुएंसर्स के यार क्या है, बस कपड़े पहन के कर तो दिया. नो, इट्स अ But लॉट yeah, ऑफ वर्क. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. हमने एक दो दफ़ा अटेम्प्ट किया. इट्स नॉट इजी. तो स्पेशली वो जो ट्रांजिशन वीडियोस होती हैं दे सीम वेरी इजी, लेकिन उसके एक तो जब वो आप कर रहे होते हैं इट्स डिफिकल्ट टू डू इट, और उसके बाद जो वो कबाड़ा होता है कमरे का उसको समेटना, आई एम श्योर a lot of work goes into it. and putting yourself out there on the Yeah. internet, you know, फिर वो जहाँ पब्लिक comments. आई में और वो जो स्क्रूटनी होती है और जो हेट कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स उनसे डील करना, इफ यू एबल टू डू दैट, मतलब वो एक अच्छी बात है. बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं डील कर पाते हैं, एंड देन डिप्रेशन और ये मेंटल सारी चीजें हेल्थ होती और हैं. हाँ वो सब. So yeah, it's not as glamorous as it may seem. लास्ट क्वेश्चन, एवर थॉट अबाउट क्विटिंग कंटेंट क्रिएशन? जब पैसों की थोड़ी तंगी होती है तो यस, कभी कभी ऐसा लगता है यार जो है कतर में अच्छा खासा कमा रहे थे तो लेट्स जस्ट गो. बट अगेन देन आई ट्राई टू थिंक ऑफ द टाइम ओवर देयर, या जॉब का जो एक अलग से स्ट्रेस होता है, या उससे आप जो अपने ख्वाबों को गला घोटते हैं व्हेन यू आर वर्किंग एट अ जॉब, तो वो जब फिर बंदा सोचता है तो व्हेन यू आर लाइक नहीं ठीक है. बट यस, कभी कभी जब पैसों की तंगी होती है तो दिल चाहता है कि छोड़ के बस जॉब कर लें कहीं बाहर. अच्छा, फॉर मी पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्विट करने का सोचो. हाँ, डीमोटिवेट ज़रूर हो जाते हैं, अगेन वही जब फाइनेंशियल सेंस नहीं बन रही होती. बट आई ऑनेस्टली लव व्हाट आई डू. मुझे बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में. तो क्विटिंग का नहीं सोचा है, बट या इट कैन गेट demotivating sometimes. तो questions ख़त्म हो गए हैं, and that's it from today. I hope you enjoyed this video, और हम मज़ीद content YouTube पे अब डालते रहेंगे. कोशिश हमारी ये है. Do let us know in the comments कि आप क्या देखना चाहते हैं, हमें ideas दें so we can make more videos for you. Anything else? No, that's it. That's it from us today, and we'll see you very soon inshallah in another video.